بھئی یہ پولیٹیکل پارٹیاں تو اپنی جنگ لڑتی رہیں گی. اگر انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی سیکیورٹی پہ بات چیت ہو, تو اگر یہ چلے جاتے تو ان کا بڑا پن تھا. لوگ کہتے کہ دیکھیں جی کتنا اچھا انہوں نے بیہیو کیا ہے کہ وہ آل پارٹی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کیا, لیکن انہوں نے چونکہ بائیک آؤٹ کر دیا, اور صرف بائیک آؤٹ ہی نہیں کیا بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں, ان پہ پرچے ہوئے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جب بھی وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو اور صوبے میں کسی اور پارٹی کی, خاص طور پر مخالف پارٹی, اگر میں یہ کہوں گا تو پھر تو سندھ میں بھی کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے, لیکن وہ تو چونکہ الائز ہیں نا, آپس میں اکٹھے ہیں, اس لیے وہ ایک ہی ایکچولی پارٹی کی حکومت ہے. تو دیکھیے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ وفاق اور اس صوبے کے درمیان کھٹ پٹ جاری رہتی ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا. مسائل حل نہیں ہوتے, لوگ سیاسی طور پر آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے وقت ضائع کرتے جاتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی آتے نہیں ہیں, قانون سازی ہوتی نہیں ہے, لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں, اور پورا ٹینیور گزر جاتا ہے اسی لڑائی کے دوران. اب کسی بھی پارٹی کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد ہیں, میرا خیال ہے نہ تو پی ٹی آئی کو یہ زیب دیتا ہے, نہ ہی دوسری پارٹیوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں. خدا کا واسطہ ہے, آخرکار سارے پاکستانی ہیں اور پوری دنیا کو آپ یہ بتائیں, یعنی آپ بھارت کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ, اپنے ہی ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں. اب اندازہ کریں مطلب کون سا یہ طریقہ ہے, یہ کون سی سیاست ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر گند اچار رہے ہیں. میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اس طرح کا کوئی بیہیویئر کرے یا اس طرح کے الزامات لگائے, وہ بھی ملک دشمنی ہے. صرف الزام بریگیڈیئر صاحب یہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, بلکہ الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے, یہ بھی کہا ہے گورنر کے پی نے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے کے پی سی بلائی تھی, حکومت کو چاہیے تھا کہ اس میں شرکت کرتے, اس وجہ سے بائیک آؤٹ کیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آج اے پی سی کے اجلاس میں شرکت ہونی چاہیے تھی, تمام جماعتوں کی نمائندگی ضروری تھی؟ دیکھیں میں تو ایک پہلے سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ جو ہیڈ آف پروونس ہوتے ہیں, گورنرز, دے ہیو ٹو بی ویری میچور. چاہے وہ پنجاب کے گورنر ہوں, سندھ کے ہوں, یا یہاں کے پی کے ہوں, یا بلوچستان, کسی کے بھی. ہی ہیز ٹو بی سمبل اور رول ماڈل فار دا پروونس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پھر ہمیں بڑا میچور ہو کے بات کرنی چاہیے, بیکاز گورنر جو ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے, میچور, رسپانسبل, پڑھے لکھے, جو سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے. سو ان کو سوچ سمجھ کے بات, کسی کو بھی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کے پی کے گورنر کی بات کر رہا ہوں, لائف وائز آپ کو یہ اس طرح کی لینگویج, اس طرح کے ریمارکس نہیں پاس کرنے چاہیے. نمبر 2, ہمارے میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک کسی پارٹی کے بعد ایک صوبے کی وہاں حکومت ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. دیٹ اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہے, ہی از آلسو ویری میچور, ہی ڈزنٹ نو واٹ از ٹاکنگ. ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں, ان کی بات کرنے کا انداز دیکھ لیں, ان کو جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, ہی ہیز لاسٹ امپیکٹ ایون ان ہز پروونس آلسو. سو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ اس سے چیف منسٹر, گورنر, دے ہیو ٹو بی ریئلی باول. ان کو اپنے صوبے کے لیے کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں 3-4 سال میں پی ٹی آئی کے حکومت ہے, وہاں 15 سال سے حکومت ہے, کوئی ویزیبل کام بتائیں کہ واٹ دے ہیو ڈن, جو کہیں جی یہ دیکھیں ہم نے صوبے میں اتنی, ہم نے روڈ ٹرانسپورٹ ٹھیک کیے, اتنی روڈز بنائی ہیں, اتنے ہم نے ہائیڈرو الیکٹرانک جو پروجیکٹ چلا دیے, اور ہمیں اتنے عوام کو سہولت دی ہے. دین آئی سے اوکے, عوام کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ دیٹ از جاب اپرچونٹی. بریگیڈیئر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور آج بھی اے پی سی کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے وہی ہوائی باتیں کی ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ اپنے وسائل پر کھڑا ہو سکتا ہے, ہم بجلی بنا سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. وفاق کو آڑے ہاتھوں لیا. جواد صاحب, یہ باتیں کب تک باتوں کی صورت میں رہیں گی؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر ہم لیگیسی کی بات کریں, ان کی گورننس کی بات کریں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر اے پی سی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آج جو اجلاس بلایا گیا تھا, اپوزیشن کو شرکت کر لینی چاہیے تھی؟ دیکھیے, مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی بڑی خوبصورت گفتگو تھی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ تو معاملات ایسے ہونے چاہیے جس پہ
इत्तेहाद का मुजाहरा हो जाए। जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा है तो उसमें तो मेरा ख्याल है सबको अब मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। फिर अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा कि देखिए वज़ीर आला KPK की बॉडी लैंग्वेज हो, इशारे हों और बड़के हों और तर्ज़े तखातुब हो, तर्ज़े तकल्लुम हो, एक्ट हो, तो वो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं ये बनता नहीं है किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का। इसी तरह गवर्नर साहब की गुफ्तगू देखी जाए तो मुझे ये तो लग रहा है कि ये जैसे दो कजन्स की आपस में लड़ाई है और उसमें वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रह गई बात जो कहा गया, देखिए इस सूबे की ज़बू हाली में ये जो अभी 15 साल का जिक्र हुआ, तो जो 12, 13 या 15 साल है उसमें हमने ये भी तो देखा ना कि दहशतगर्दों को आबाद किया गया और फिर कहा गया कि फाइटर्स आ रहे हैं, जंगजू हैं, इन्हें सेटल करेंगे, सूबा उनके हवाले कर दिया गया। फिर ये भी दुरुस्त बात थी आपने जो भी कही कि ANP ने जब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें इनको भी तो जाना चाहिए था ना, सूबा तो सबका है। लिहाजा ये तर्ज़े अमल हमें ले बैठा है, ले बैठेगा अगर होश के नाखून नहीं लिए जाएंगे। इस वक्त तो मामला ये चाहिए, देखिए अभी नजर उस तरह से नहीं आ रहा, हम कुछ फुटेजेस देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं तो दिल तड़प उठता है कि हम सवात से देख रहे हैं, पिंडी तक, लाहौर तक, पंजाब तक और मुख्तलिफ सूबों में। चाहिए तो ये कि सैलाब के हवाले से ये सारे इकट्ठे हों, चाहिए तो ये कि ये मसाइल हल करे, नाजायज तजावुजात का खात्मा करे और करार वाकई सजा भी तो देना किसी को। आप चले जाए कालाम तक, आप चले जाए चित्राल तक, आप चले जाए दीगर दरियाओं के किनारे, आप अभी आगे चल के उस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जवाद साहब, और इसीलिए हम अपने दूसरे टॉपिक में इसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाक़ई साहब, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पे अदम एतमाद का भी खतरा है, वफाकी हुकूमत पे वो बरस भी रहे हैं। अगर ओवरऑल हम PTI की बात करें तो PTI में अब जो बानी PTI के बेटे हैं उनके वतन आने से मुतल्लिक वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि वो वतन वापस आ रहे हैं। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो कह रहे हैं कि पूरी जो पार्टी है वो मिलकर अगर बानी को नहीं निकाल सके तो फिर उनके बेटे आके क्या करेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना आपको लगता है कि शोभा देता है और ये मैच्योर स्टेटमेंट्स होती हैं? ये जो अदम एतमाद वाली बातें हैं ना, इसी ने तो इस मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कोई हुकूमत बनती है तो अपोजिशन उसको गिराने की कोशिश में लगी रहती है और 5 साल इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं। जब तक ये रवश ख़त्म नहीं होगी, अगर देखें मरकज़ में अगर एक पार्टी की मेजॉरिटी है तो उनको हुकूमत करनी देनी चाहिए कि ठीक है जी आप अपनी परफॉर्मेंस दें, जब हम जीत कर आएंगे हम कर लेंगे। अब अगर वो KPK में हैं और ये अगर वहाँ पे यही तोड़ फोड़ हॉर्स ट्रेडिंग वही काम शुरू हो जाएगा, वहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, वहाँ आप ये देखिए कि एक तबाही आ जाएगी। और अगर अदम एतमाद की कामयाबी जमहूरियत की हार होती है लेकिन दूसरी पार्टी उसे अपनी जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, ये गलत बात है ना। यही रवैया तो बदलने की जरूरत है। और खास तौर पर हमारे मुल्क में, जहां हमारे मुल्क में जमहूरियत पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदा है, मतलब वो उसको इंजेक्शन दे के जिंदा किया हुआ है, अदरवाइज ये कोई जमहूरियत नहीं है। तो बाकी रही PTI बानी PTI के बेटों के आने की बात, मैंने तो कल भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान अगर उनको पाकिस्तान का वीजा देगी तो फिर ही वो पाकिस्तान आएंगे ना। वो जो PTI के लोग ये कह रहे हैं कि जी अब हमने कंफर्म कर दिया है कि दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, मुझे ये बता दीजिएगा अगर वहां के सफारत खाने ने या हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वीजे ना दिए तो वो किस तरह पाकिस्तान आ सकते हैं? कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि वो आएँ, हम वीज़े भी उन्हें मिलेंगे, उन्हें आने भी दिया जाएगा, लेकिन ये है कि वो सिर्फ अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें, उसमें अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो करें। ये किसने यकीन दहानी कराई है? मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूँ, हुकूमत ने कोई उनको वीजा नहीं देना, ठीक है दे के देख लें। अगर वो, हाँ ये बात दुरुस्त है, उनके आने पर भी कुछ नहीं होना। हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं और ऊपर के लोगों ने भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। साहब तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर 24 घंटों में भी उन्हें वीजा चाहिए होगा तो प्रोवाइड किया जाएगा। चलें देख लेते हैं। वो मेरा ख्याल में वो चाहते हैं कि वो एक दफा पाकिस्तान आके वो पंजाबी में कहते हैं ना अपना रंजा राजी कर लें, और जब उनको हवालात 1 घंटे में अगर रखा गया, यहाँ एक SHO एक ASI की ड्यूटी लग गई कि इन दोनों को उठा के गाड़ी में
डालें और किसी थाने में बंद कर दें तो मेरे ख्याल में सारा काम जो है ना वो चौपट हो जाएगा। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। भाई कौन सा एहतजाज, कौन से उनके बेटे आ जाएं, कुछ नहीं होना। इस एहतजाज की वजह से अगर बानी पीटीआई ने रिहा होना है तो ये खाम ख्याली है पीटीआई की, ये नहीं होना। मैं डे वन से कह रहा हूँ ये सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी पीटीआई को मानने पड़ेगी कुछ बातें तो ही वो बाहर आएंगे, वरना वो बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या राय रखते हैं? अगर हम बानी पीटीआई के बेटों की करें तो अमेरिका में रिचर्ड ग्रीनेल से उनकी कल मुलाकात हुई है, वो भी बड़ी खबरें जो हैं वो पॉपुलर रही हैं कि ये जो हम अलीमा खान जो कह रही थी कि पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे बात होगी, फिर पाकिस्तान आएंगे और बाकायदा तौर पे तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। आपको लगता है कि ये कुछ किरदार अदा कर सकेंगे बेटे बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर? और फिर 5 अगस्त और 90 दिन का अल्टीमेटम, इसमें भी कंफ्यूजन बरकरार है। ब्रिगेडियर साहब, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वीजा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आए, आके लॉफुल तरीके से अपने वालिद से मिलें, मुलाकात करें। मेरे ख्याल में जलसे जुलूस ना वो जाएंगे, ना उनको जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, उनकी अपनी एक इम्प्लीकेशन हैं, वो उसको देखेंगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जबकि पार्टी में पार्टीलेस लीडरशिप है, नंबर 1, अलीमा सिस्टर्स की एक पार्टी है, लॉयर्स की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज की एक पार्टी है, अली अमीन गंडापुर की एक पार्टी है। आप मुझे बताएं कि इसमें व्हाट विल हैपन? हर एक की एक इनकी मस्जिद है। डीसी ये बहुत बड़ा अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे अगर इस स्टेज के ऊपर जो पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई है 22 नवंबर के बाद और 26 नवंबर के बाद, ये अपनी पार्टी को तबाह करने के मुताबिक, दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन, किसी हालत में इनको नहीं आना चाहिए। दे शुड गो टू वन असेंबली में जाके फाइल करें। 47 केसेस जो इनके फॉर्म केसेस है वो लड़े। लॉयर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, सारे चाहते हैं कि इमरान खान अंदर है, ये अपनी ये चुप करके बैठे रहें, मजे करते रहें और ये फायदा उठाते रहें। यही इनकी नीयत है। दे नॉट सिंसियर टू देयर पार्टी लीडर। और इस वक्त पार्टी में तजाद भी है, बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं करें। दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप इस वक्त जबकि इंडिया के साथ अभी आपने मार्के हक किया, आपकी पूरी कौम इकट्ठी हुई है, फौज के साथ सबका गठजोड़ हुआ है, फौज ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया थी फौज को हरा के। इसलिए इस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा ये सूट करता है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो उनका नैरेटिव है कि दुनिया पैदा करो, फौज को कमजोर करो, ये वो नैरेटिव है। आई थिंक हमें इसको डिफीट करना है, द नेशन एंड द कौम, जो जिस तरीके से हमने अभी की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये बानी पीटीआई को समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वक्त की नज़ाकत को समझना चाहिए। जवाद साहब, दूसरा ये था कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केस में तो बरी हो गए हैं। र्यूमर्स ये भी आ रही थी कि वो रिहा हो जाएंगे, पार्टी की क़यादत वो संभालेंगे। लेकिन पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये जो कयास आराइयाँ थी उसको कहा है कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन पर दीगर केसेस भी हैं और फिलहाल ऐसा नहीं वो देख रहे कि वो बाहर आएंगे और पार्टी की क़यादत संभालेंगे। आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है जो सही मानों में बानी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर सकती है, जो पार्टी को संभाल सकती है और इस वक्त जो हम डिस्प्यूट देख रहे हैं पूरी पार्टी में उसको कम कर सकती है? कोई एक ऐसा शख्स? नहीं, जब देखें एक ही घंटाघर हो उसके इर्द गिर्द घूमा जाए और देखा जाए तो पीटीआई तो बेसिकली तो इमरान अहमद खान नियाजी है ना, और उन्हीं के गिर्द घूमती है। मैं नहीं समझता कि उसके बाद इस पार्टी को कोई मुश्तमे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि क़यादत कौन करेगा, आपस में तो दाल बट रही है और जिस तरह ये एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। अब देखिए, वकला की तंजीम हो, केसेस ना उस तरह से चल पा रहे हो, सारी गुफ्तगू अदालतों के बाहर अगर ये करेंगे तो बानी कैसे रहा होंगे? लिहाजा ये चाहते ही नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल बड़े वाजे लाइन खींच दिया रेड लाइन के बारे में कि इस तरह नहीं होता और जाना अदालतों में ही पड़ेगा। रह गई बात, देखिए इस्राइल के नवासे हो, ब्रिटिश वो सिटीजन हो, अमेरिका जाके वो लॉबिंग करें और पाकिस्तान आके एहतजाज करे, तो हिंदुस्तान और इस्राइल तो ये चाहते हैं, मगर पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मल नहीं है। और मैं नहीं समझता कि वो अगर होंगे तो एक तरफ एक ट्रक होगा, दूसरी तरफ दूसरा ट्रक होगा और सारे ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। मैं अब वो नहीं देख रहा, अब वो जान नहीं है। अच्छा। और तने मुर्दा में अब जान उस तरह से पड़ भी नहीं सकती मेरे ख्याल में। ठीक है जवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया।